Welcome to Flawless Learning. Today our topic is joins in SQL. So what are joins in SQL? Basically in SQL, joins are the backbone of relational databases. Okay. So now before going to the join, just let me give you a small brief description about aliases because whenever we go query of joins, we need that aliases part. So what is aliases? Basically, what is the purpose? So, aliases is temporarily names assigned to tables or columns for better readability and simplicity. Basically, in one line, if we all have nickname, okay, so we have all have nickname, and what is the purpose of nickname? Because our nickname is small, right? So it's मतलब बुलाने के लिए बहुत इजी हो जाता है, हम लोग ऐसे छोटे छोटे निकनेम कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा नाम, जैसे हम लोगों का नाम होता है कि नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इट्स अ ह्यूज नेम sometimes, so we use a nickname to call her or to call him, this kind of thing. So that's what aliases in SQL also. If there is a table name is very large, okay, that like employees, so you have to write it every time employees, the word employees, right? So if you take that okay, employees is E or employees is EMP, this kind of things. So that's what the purpose of aliases. So it's improve query clarity and reduce typing effort in complex query, because when the queries is lengthy, so you have to write the employees again and again. So instead of employees word, just simply write it E, this kind of thing. Now syntax, see, now select A dot column 1 and B dot column B. Now this aliases is works for tables and for columns, दोनों तरह के लिए. Okay. Now for tables, if you want to like see, there is a table A, so you suppose table A is employee. Okay, let's go to the example to make it very clear. So see, there is the name is employee, name as employee. So E1, so what is the E1 here? So E1 is a table name. Okay, now हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, E1 जो है, ये देखो, फ्रॉम एम्प्लॉयज, द टेबल नेम इज एम्प्लॉयज. सो एम्प्लॉयज को हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E1. तो एलियासेस का कमेंट क्या होता है, एस, नॉर्मली एस, जस्ट एम्प्लॉयज एज E1. सो वेन एवर द कमेंट गेट E1, it thinks that okay, E1, that means it indicates the employees table, this kind of thing. Okay, so employees is E1. now E1 एक टेबल हो गया, so employees टेबल का हम नाम दे दी E1 का लिए. अभी एम्प्लॉयज का अंदर क्या क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉयज आईडी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज नेम हो सकते हैं. तो जो एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय नेम है, उसको हम कैसे लिखें, देखो E1, सो E1 इज एम्प्लॉयज टेबल, सो E1 डॉट, दैट मीन्स E1 से फेच करो, टू फेच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल विच वी डिनोटेड एज E1. सो E1 डॉट एम्प्लॉय नेम. नाउ द एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल which we denoted as employee. Okay, so first of all, think about the table name, that employees is the table name which we represent as E1. now employees का अंदर क्या क्या है, employees name है. so employees tables का अंदर जो employee name है, उसको हम employee से बुला रहे हैं. ठीक है, अभी E2 is also a employees, another employees. Okay, so there is maybe the different table name also. so अभी E2 का जो employee table है, वो table से जो employee name है, उसका manager का मतलब ऐसे मैनेजर बोल रहे हैं, ऐसे वाला. ठीक है, so this kind of thing aliases does. now coming to the joins. Okay, joins in SQL. So basically joins are the backbone of relational databases. They allow us to combine data from multiple tables based on a common column. Okay, so imagine working with customer and order tables. Now joins helps us connect the dots between them. Okay, it's just like the bridge. So there is a customer table, there is a order table, so how can you connect that? So using join we can connect that. There is a different type of joins to handle various use cases like inner join, left join, right join, full, cross and self join, this kind of. Now let's talk about one by one. First is inner join. So what inner join does? So inner join is the most commonly used type of join. It returns only the rows that have matches values in both table. Okay. For instance, if we join an order table, okay, an order table and a customer table, we get only the rows where the customer ID match in both table. Okay. So here's the example of it. So basically, if we think of diagrammatically, so basically if this is a table
table A and this is table B. ओके, नाउ इनर जॉइन क्या करते हैं, ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना ये देता है, ठीक है. सो दिस इज द इनर जॉइन. ये अगर टेबल ए हो, टेबल ए, सॉरी मेरा इतना गंदा हैंड राइटिंग के लिए, because it's difficult to use that laser point, and this is B. So basically state operation पढ़े हो गए सब लोग 12 में, क्लास 12 में. So there is a intersect, right? So union intersect. So it takes the records which matches the record from table A to table B. This is the inner join. Okay. Now go to the left join. Now what is left join? Left join is a also type of table. So its purpose, it returns all rows from the left table and matching rows from the right table. Okay, so non matching rows in the right table returns मतलब null value दे देंगे, ठीक है. So example is normal. Here just use instead of inner join we use here left join. Okay, so if we also think about the diagram. Okay, so what it does, so basically अगर this is A and this is B, okay, this is A and this is B. So basically लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, A का अंदर जो जो है वो सब देगा और उसके साथ साथ जो B में जो इंटरसेक्ट है ना वो देगा, ठीक है. So it's basically returns all the row from the left tables. Here left table is A and matching rows from the right table which is here B, right? So that left join does, and this, okay, so this portion. Now right join. So I hope अगर तुम लेफ्ट जॉइन समझ में गए हो तो राइट जॉइन इज इजी, लाइक. सो लेफ्ट जॉइन रिट्राइव्स ऑल द रो and right join retrieves opposite of left join. So it includes all rows from the right table along with the matching rows from the left table, right? So rows in the right table without a match in the left table will show null value. So that's the syntax and that's the example. Just instead of left join, just write it right join. Okay, now what is this is A and this is B. I hope you just guess the diagram, right? So this kind of thing, this is B and this is A. Okay, so this. Now go to the full join. And full join, it combines the result of both left and right join. Okay, and this is the syntax and there is also example. And basically the example or the comment is very easy. Just select customer and customer is a table and customer से हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं. देन ऑर्डर्स टेबल, ऑर्डर से हम लोग ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं. देखो ये डॉट जो है ना तो ये सिलेक्ट कर रहे हैं और कस्टमर जो है और ऑर्डर जो है ये टेबल का नाम है. अभी किसके ऊपर करेंगे, फुल जॉइन और लेफ्ट जॉइन और आउटर जॉइन जो भी होगा ऑर्डर्स के. अभी देखो एक कॉमन होना चाहिए जो रो दोनों में ही प्रेजेंट हो. जैसे कस्टमर आईडी इज हैव टू प्रेजेंट इन द कस्टमर टेबल एंड ऑल्सो इन द ऑर्डर्स टेबल. सो वी हैव टू सिलेक्ट दैट रो which present in both the table. Here it's that row is customer id. So basically customer id is present in customer table as well as the order table, and we joined order on customers.order id is equal to orders.order id, customer id, sorry, customer id. That means means that they combine the result of left and right join returning all rows from the table. Now rows which अभी इधर भी हो सकते हैं कि कोई भी टेबल में ये मैच ना करे, कुछ कुछ मतलब रिकॉर्ड्स होगा जो कोई टेबल में मैच नहीं करेगा वो null वैल्यू दे देंगे, ठीक है. तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स. नाउ कमिंग टू द क्रॉस जॉइन. ट्यूटोरियल का टाइम तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, सो थोड़ा सा पेशेंस रखो. हम लोग वर्क बेंच में अभी जाके ये ट्यूटोरियल करेंगे. उसके पहले थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं क्योंकि हम लोगों को होता है ना कि एक बार थ्योरी देख लेते हैं उसके बाद हम लोग ट्यूटोरियल में जाएंगे तो वो और ज़्यादा ये होगा. क्योंकि पर्पस उधर हम लिख नहीं सकते ना कि क्या क्या पर्पस है, और इफ़ यू कांट गो टू थ्योरी एंड सिंटैक्स दिस काइंड ऑफ थिंग. सो दिमाग में बैठते नहीं जब तक ना तुम पर्पस, जब तक ना तुम इसका सिंटैक्स समझ लो. क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, अभी अगर मैं ऑर्डर और कस्टमर लेके तुमको दिखा दूँ
कि ठीक है, इसमें कस्टमर है, इसमें ऑर्डर टेबल है, और इस कस्टमर आईडी में तुम ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो तुम अभी अभी के लिए तो तुम समझ जाओगे, लेकिन जब खुद करने जाओगे उधर ये नहीं हो सकता है ना कि उधर ऑर्डर एंड कस्टमर टेबल ही हो। देयर डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल, देयर इज प्रोडक्ट टेबल, देयर इज सेल्स टेबल, देयर इज एम्प्लॉयज टेबल, देयर इज एम्प्लॉय सैलरी टेबल. So if you don't get the syntax, that how can we do the cross join, the left join, the outer join, what is the syntax of it, how can you handle the column, and how can you handle the table name, so what is the purpose of it, and so you can't get to like broadly. Okay, so that's why आई ऑलवेज प्रेफर कि जब भी कोई टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका पर्पस समझो, उसका सिंटेक्स समझो, देन उसका एग्जाम्पल समझो, देन हम लोग वो प्रैक्टिकल में करेंगे। ये सीक्वेंस मैं तो मेंटेन करती हूँ ताकि एकदम से पूरा की पूरा क्लियर हो जाए। अगर तुम लोगों को भी ये अच्छा लग रहा है कि हाँ ऐसे तरह का करना चाहिए, तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो कि हाँ ये तरीका मतलब सही है तुम लोगों के लिए भी। तो अभी एग्जाम्पल में चाहे तो सिलेक्ट प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरीज और कैटेगरी नेम। हियर प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरी आर द टेबल, राइट, एंड देन क्रॉस जॉइन कैटेगरीज। सो बेसिकली क्रॉस जॉइन क्या करते हैं ना, इस प्रोड्यूसेस द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है कि every row, each and every row from the first table is combined with the every row from the second table. तुम लोग वो सेट ऑपरेशन का टाइम कार्टेशियन प्रोडक्ट करे होगे कि सबके साथ सबका ऐसे कंबाइन हो जाता था एक रो। मतलब अगर टेबल ए में 5 रो है तो 5 रो के साथ ही सेकेंड टेबल का मतलब जो ईच रिकॉर्ड है वो कंबाइन होगा। ऐसे ही होते हैं क्रॉस जॉइन। ओके, नाउ लास्ट इज सेल्फ जॉइन। So a table is joined with itself. That's a self join. As the name suggests, it's self. तो क्या होगा, joined itself होगा, and it is often used to compare rows within the same table. जब हम लोग एक सेम टेबल के अंदर ही ना दो ऐसे रोज को कंपेयर करना चाहते हैं तब हम लोग सेल्फ जॉइन पे जाते हैं। ओके, so here's also the example. So e1 dot e1 name and e2 is manager name from employees, and there is the comment is inner join, right, inner join. And the what is the key here, that key is manager id, and for d2 के लिए ये है employee id. Okay, so that's the okay key points to remember हम बाद में आएंगे। अभी पहले हम MySQL वर्कबेंच में जाके थोड़ा बहुत इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो मैंने क्या किए, तुम लोगों के ऐसे टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने पूरा ऐसे इंसर्ट करके रख दिए। तो अभी हम लोग एक जल्दी से डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। सपोज डेटाबेस का नाम हम दे रहे हैं ज्वाइन ही दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज्वाइन के पर्पस हम लोग कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक आ क्रिएट डेटाबेस ज्वाइन, बट ज्वाइन हम कर नहीं सकते, सॉरी, बिकॉज ज्वाइन इज ऑल्सो यूज इन द कॉमन। सो हम लोगों को वो करना होगा, सपोज just normal take as tutorial create database। ओके, सो हम फटाफट से डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल। ओके, सो देखो क्रिएट डेटाबेस हो गया। अभी इसका अगर जानना हो कि कैसे डेटाबेस क्रिएट वगैरह करते हैं तो सबका ट्यूटोरियल ऑलरेडी आई हैव SQL प्लेलिस्ट पे जाओ, एंड देन देयर इज इंट्रोडक्शन DDL देयर, ईच एंड एवरी कमेंट इज मतलब मैंने एकदम पकड़ पकड़ के कराए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब एक मतलब ये वीडियोस देखने के पहले वो सब वीडियो तुम देख लो ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नाउ डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर लिया। मैं ये भी सिखा दिए थे तुमको कि कैसे तुम चेक करोगे कि ये इस डेटाबेस क्रिएट हो गया। जस्ट रिफ्रेश इट स्कीमर्स, एंड अंडर स्कीमर्स यू विल शो द नेम। सी देयर इज अ ट्यूटोरियल, राइट। इधर अभी टेबल नहीं है, हम लोग टेबल भी क्रिएट करेंगे, राइट। नाउ टेबल क्रिएट करने के लिए तुम कंप्यूटर को कैसे मतलब समझ जाओगे कि हम लोग ट्यूटोरियल की यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ द डेटाबेस नेम दैट इज ट्यूटोरियल। ओके, सो ये मैं पहले मतलब काफ़ी बार बोल दिए थे। ओके, ना यूज़ ट्यूटोरियल हो गया। अभी हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, तो ये तुम हाथ में लिखना, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैं थोड़े बहुत लिख के रख दिए कि ओके हो जाए। देखो अभी ट्यूटोरियल के अंदर टेबल्स हो गया। अभी देखो इसको मैं रिफ्रेश करूँगी तो फेच होगा। अभी टेबल के अंदर कस्टमर टेबल आ गया। फिर ऑल्सो मैंने एक ऑर्डर टेबल भी क्रिएट करेंगे, ठीक है।
ऑर्डर भी हो गया। देन प्रोडक्ट टेबल क्रिएट करेंगे। जस्ट वीडियोस को पॉज करो एंड खुद लिखो, ठीक है। ये खुद हाथ में लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुमको नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रही है। तुम देखोगे तो अभी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टेबल क्रिएट हो रही है, कैटेगरीज टेबल, उसके अंदर कैटेगरी आईडी रहेगा, उसके अंदर कैटेगरी नेम रहेगा, एंड उसके बाद उसका डेटा टाइप, दिस काइंड ऑफ थिंग विच हैव ऑलरेडी मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो सो मेनी टाइम्स। बट जब तक तुम खुद नहीं लिखोगे तब तक तुमको वो हैबिट नहीं बनेगा, ठीक है। अभी हम इंसर्ट कर रहे हैं एक, ठीक है। सो कस्टमर पे हम इंसर्ट कर दिए। उसके बाद हम सैम्पल पे इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़। सैम्पल पे सैम्पल डेटा इंटू ऑर्डर टेबल्स भी कर दी। फिर प्रोडक्ट्स पे इंसर्ट कर दिए। फिर कर दिए हम लोग कैटेगरीज पे। ओके, सो डन। नाउ लेट्स चेक इट आउट। जस्ट रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद ट्यूटोरियल्स पे देखो टेबल बन गया और टेबल के अंदर कैटेगरीज, कस्टमर, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स। नाउ कमिंग टू द जॉइन, ईच एंड एवरी जॉइन। नाउ सो फर्स्ट इज inner join. So just inner join. See, so there's a customer name, order ID and customer name we fetched. So basically the customer ID and order ID ये क्या कर रहे हैं कि जो जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो हम लोगों को दे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, जॉन जो ये जॉन नाम का जो कस्टमर है उसका ऑर्डर आईडी मैच कर गया, दोनों टेबल में ही प्रेजेंट था, वो ऑर्डर्स में भी प्रेजेंट था एंड कस्टमर में भी प्रेजेंट था। ओके, एंड तुम ये काम ये कर सकते हो टू चेक इट आउट दैट, मतलब क्या होगा ना, तुम लोगों को ये आएगा कि ऐसे तो आ गया, हम लोग कैसे सोचेंगे कि ये सही है ये गलत। ऐसे तो तुम छोटे छोटे ऐसे जब मैं टेबल क्रिएट किए हो तो मैं दिखा दे रही हूँ तुमको, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगी ना, देखो जस्ट जाऊंगी इधर, देखो जॉन आए हैं तो दैट मीन्स जॉन को हम लोग देखेंगे दोनों टेबल में प्रेजेंट है कि नहीं। तो अभी कैसे चेक करेंगे हम लोग, देखो कस्टमर, तो कस्टमर में जॉन है, इसका ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी है 1। ना हम लोग जाएंगे ऑर्डर टेबल पे। सो ऑर्डर टेबल में भी हम देखेंगे कि कस्टमर आईडी 1 है कि नहीं। देखो कस्टमर आईडी इधर भी 1 ही है, दैट्स वाई जॉन इज हियर। ओके, सो मतलब पहले के लिए तुम अभी शुरुआत में तुम क्या करते हो ना, तुम्हारे दिमाग में आते हैं कि ओके हम लोग तो समझ तो लिए हैं कि ये मैचिंग रिकॉर्ड दे गए और ऐसे काइंड ऑफ ये सच में दे रही है। तो ये तुम लोग ऐसे करके तुम ऐसे मतलब पाओगे अभी पहले कुछ दिनों के लिए कि मतलब ऐसे होता है ना, इंटरेस्ट लगता है कि अच्छा सेम दे रहे हैं हम लोग, मतलब समझ पा रहे हैं, ऐसे वाला फील आएगा। देन लेफ्ट जॉइन पे, ठीक है। तो लेफ्ट जॉइन पे भी हम लोग करेंगे ऐसे ही करके, और तुम लोग मेरे साथ साथ भी कर सकते हो, जस्ट वीडियोस को पॉज करो क्योंकि वीडियोस बहुत लेंदी होते जाएगा अगर बैठे बैठे तुमको सब ऐसे लिख लिख के कराऊँ तो इसके लिए मैं थोड़ी बहुत ऐसे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन तुम कॉपी पेस्ट ना करके तुम बैठे बैठे लिखो और इसको यूटिलाइज करो कि हाँ हो रही है। ओके, देखो इस पर भी हम लोग लेफ्ट जॉइन कर दी, दैट इज कस्टमर नेम को हम लाए एंड ऑर्डर आईडी जो लेफ्ट टेबल में मैच हो रहा है। अभी लेफ्ट टेबल और राइट टेबल ऐसे तुमको समझ में आएगा। जो फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे नेम, जैसे हियर इज कस्टमर, कस्टमर इज द लेफ्ट साइड, तो इट्स द कंसिडर्ड एज अ लेफ्ट टेबल एंड ऑर्डर इज कंसिडर्ड एज द राइट टेबल here. Okay, so that's how you can create, and then the right join, and there is a टास्क टू यू, मैंने तुमको होमवर्क दे रही हूँ कि मैं ये स्लाइड तुमको अभी दिखा रही हूँ, तुम एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो ताकि तुम इसको खुद घर में कर पाओगे। ओके, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। ओके, देन फुल जॉइन, एंड तुम देख पाओगे कि फुल जॉइन में पूरा का पूरा वो डेटा दे दिए। फिर आएगा क्रॉस जॉइन, एंड क्रॉस जॉइन में भी मतलब सबके साथ सबका कंबाइन कर दी, और फिर आएगा सेल्फ जॉइन। फॉर सेल्फ जॉइन मैं एक चीज़ दिखा दे रही हूँ तुमको, ये देखो इधर मैंने सेल्फ जॉइन क्या होता है ना कि जॉइंस जस्ट सेल्फ जॉइन इज अ टेबल इज जॉइंड विद itself, right? So here also I have created a table employees. Now insert table data into the employees table. I have inserted the values. Okay, now self join query. So देखो दिस इज द सेल्फ जॉइन क्वेरी। सो सेल्फ जॉइन क्वेरी क्या होता है ना, देखो एक ही टेबल पे काम हो गया हम लोगों का। सो देयर इज अ ओनली टेबल नेम एट एम्प्लॉयज, सो एम्प्लॉयज के ऊपर it's joined self itself when we use that. So basically where that employees manager id and employee id is same, we want that
name of the employee whose manager ID and employee are the same. Okay, so that kind of thing. Now I will give you some practical practice exercises. So, before that, key points to remember. So, joins is essential for relational database queries. Okay, so always use proper aliases, right? For clarity or complex join के लिए. Okay, so and then there is optimized join for large datasets to improve performance. Okay, हम लोग join कब use करते हैं? Whenever we get that large dataset, we have to improve our performance. Then we optimize the joins. Okay, and then there is some practice exercise to you. So just take a screenshot of this and तुम घर में ये करने की कोशिश करो. If you have any kind of doubt to solve this exercises, just let leave a comment in the comment section that okay, question one doubt, ऐसे करके तुम एक छोटा सा comment डाल दो and I will show how can you handle this exercises. Okay, so thank you for watching. Let's be flawless together. Thank you.